شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ السلام علیکم دوستو، پرانے وقتوں کی بات ہے، دو بھائی ساتھ رہا کرتے تھے۔ دونوں کسان تھے۔ چھوٹا بھائی بڑے بھائی سے زیادہ محنتی تھا اور وہ بہت رحم دل بھی تھا، لیکن وہ غریب تھا۔ جبکہ بڑا بھائی زیادہ محنت نہیں کرتا تھا، لیکن اپنی چالاکیوں سے اس نے بہت سی دولت اکٹھا کر لی تھی۔ ایک مرتبہ چھوٹا بھائی نماز پڑھ رہا تھا۔ نماز پڑھتے پڑھتے اس کے دل میں خیال آیا، کیوں نہ میں کسی دوسرے شہر میں چل کر اپنی حالت کو بہتر بنانے کی کوشش کروں، کیونکہ یہاں پر میں اتنی محنت کرتا ہوں، کڑی دھوپ میں ہل چلاتا ہوں، لیکن مجھے یہاں کوئی بھی اچھا نتیجہ نظر نہیں آ رہا۔ ویسے تو اللہ تعالیٰ کا شکر ہے، لیکن پھر بھی میں کسی کے سامنے ہاتھ نہیں پھیلانا چاہتا۔ یہاں تو ایسی نوبت آ جاتی ہے کہ بڑے بھائی کے در پر جانا پڑتا ہے اور بڑا بھائی ناراض ہو جاتا ہے۔ بہتر یہی ہے کہ میں یہاں سے نکل جاؤں۔ ایک روز یہی ارادہ کر کے وہ اللہ تعالیٰ سے دعا کر کے اس گاؤں سے نکل گیا۔ چلتے چلتے وہ ایک ایسی جگہ پر پہنچا جہاں کسی بادشاہ کا محل بن رہا تھا، لیکن اس بادشاہ کے ساتھ عجیب بات یہ ہو رہی تھی کہ جب محل ایک طرف سے بن جاتا اور کاریگر یعنی کام کرنے والے دوسری طرف کام کرنے لگتے تو پہلی طرف کا بنایا ہوا حصہ خود بخود گر جاتا تھا۔ وہ یہ عجیب بات دیکھ کر کچھ دیر تک وہیں کھڑا رہا، دیکھتا رہا۔ اتنے میں بادشاہ کی سواری وہاں سے گزری۔ بادشاہ نے ایک عام سے کپڑے پہنے ہوئے آدمی کو اس طرح محل کی طرف دیکھتے ہوئے پایا تو اپنے سپاہیوں سے کہا، ہمیں اس شخص کے پاس لے چلو، آخر یہ کیا دیکھ رہا ہے۔ بادشاہ پاس پہنچا تو اس نے پوچھا، تم کون ہو، کہاں سے آئے ہو اور کہاں جا رہے ہو؟ یہاں اجنبی ہو کیا؟ اب سے پہلے تمہیں کبھی یہاں نہیں دیکھا گیا۔ اس غریب آدمی نے کہا، حضور میں بہت غریب آدمی ہوں، قسمت کو آزمانے کے لیے کسی دوسرے شہر جا رہا ہوں۔ اس پر بادشاہ نے کہا، جب تم اپنی مراد کو پہنچ جاؤ تو مجھ کو ضرور یاد رکھنا اور کسی سے اس بات کی وجہ معلوم کر کے مجھے ضرور بتانا کہ میرا محل اس طرح بننے کے بعد آدھا کیوں گر جاتا ہے۔ غریب آدمی نے بادشاہ سے وعدہ کر لیا کہ یہ بات معلوم کر کے اسے ضرور بتائے گا، اور وہ آگے اپنے سفر پر روانہ ہوا۔ وہ جہاں بھی ٹھہرتا وہاں پر 2 رکعت نفل نماز ضرور ادا کرتا۔ چلتے چلتے راستے میں ایک دریا آ گیا۔ اس نے سوچا، کیوں نہ دریا سے وضو کر کے میں نماز ادا کر لوں۔ ابھی وہ وضو کر کے نماز کی نیت باندھ ہی رہا تھا کہ دریا میں سے ایک بہت بڑی مچھلی باہر نکلی۔ اس مچھلی کا رنگ بالکل سیاہ یعنی کالا تھا۔ اس آدمی نے آج تک ایسی مچھلی نہیں دیکھی تھی۔ بہرحال اس نے دل میں سوچا نہیں، بس اس کے ذہن میں یہ سوال ضرور اٹھا تھا۔ مچھلی کہنے لگی، اے مسافر، تم کون ہو، کہاں جا رہے ہو؟ وہ آدمی بہت حیران ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے اسے بولنے کی طاقت عطا کی ہے، ضرور اس کے پیچھے کوئی نہ کوئی حکمت ہوگی۔ اس غریب آدمی نے مچھلی کو اپنے سفر کا مقصد بتایا۔ وہ مچھلی کہنے لگی، جب تم کامیاب ہو جاؤ اور اپنے مقصد کو پا لو تو مجھے ضرور یاد رکھنا۔ غریب آدمی نے پوچھا، ایسا کیا مسئلہ ہے تمہارے ساتھ کہ تم اتنی پریشان ہو؟ اور میں نے بہت سی مچھلیاں دیکھی ہیں، لیکن تم جیسا رنگ میں نے کسی کا نہیں دیکھا۔ وہ مچھلی بولی، میں دریا میں رہتی ہوں، اس کے باوجود میں اندرونی طور پر جلتی رہتی ہوں۔ میرے سینے میں ہر وقت آگ لگی رہتی ہے۔ کسی سے پوچھنا آخر اس کا سبب کیا ہے، اور تمہیں تمہارے سوال کا جواب بھی مل ہی جائے گا کہ میں ایسی کیوں ہوں۔ مجھے سمجھ نہیں آتا کہ آخر اس میں کیا راز ہے۔ سوچو، پانی میں رہ کر بھی میں جل رہی ہوں۔ غریب آدمی نے کہا، تم بے فکر رہو، میں تم سے وعدہ کرتا ہوں تمہارے سوال کا جواب تمہیں ضرور مل جائے گا کہ تم ہر وقت اندرونی طور پر کیوں جلتی رہتی ہو۔ وہ دریا کو پار کر چکا تھا، کشتی سے اترا، کسی جنگل میں داخل ہو گیا۔ وہ جنگل بہت گھنا تھا، اس میں بڑے بڑے درخت موجود تھے۔ اسے بھوک لگی، کھانے کا کوئی سامان اس کے پاس نہیں تھا۔ اچانک اسے ایک آلوچے کا پیڑ نظر آیا۔ اس نے کچے پکے آلوچے توڑے اور بیٹھ کر کھانے لگا۔ سارے کے سارے پھل کڑوے تھے، میٹھے بالکل نہیں تھے۔ اس غریب آدمی نے وہ سارے آلوچے پھینک دیے اور غصے میں درخت کی طرف لپکا کہ اسے توڑ دے، تاکہ اس طرح کوئی دوسرا آدمی دھوکے میں اس کا پھل نہ کھائے۔ جب وہ اس درخت کی شاخیں توڑنے لگا تو آلوچے کا پیڑ فریاد کرتے ہوئے بولا، بھائی مجھے تکلیف نہ پہنچاؤ، میں تو خود بہت پریشان ہوں کہ میرا پھل اتنا کڑوا کیوں ہوتا ہے۔ جب تم اپنے مقصد کو پا لو تو پھر کسی سے یہ ضرور پوچھنا کہ میرا پھل کڑوا کیوں ہوتا ہے۔ اس آدمی نے پیڑ سے بھی وعدہ کر لیا۔ اب وہ جنگل کے بیچوں بیچ پہنچ چکا تھا۔ وہ بہت اندھیری جگہ تھی، وہاں پر
किसी इंसान के रहने का कोई अंदाजा नहीं था। कोई इंसान भूले से भी अगर वहां कदम रख देता तो कोई ना कोई दरिंदा उसे खा जाता, उसे अपना निवाला बना लेता। लेकिन उस आदमी को दरख्तों के झुंड में एक झोंपड़ी नजर आई। हैरत की बात यह थी कि वहां पर कोई इंसान हो सकता था। वो गरीब आदमी थक तो चुका था और बहादुर भी था। अगर कोई दरिंदा जानवर उसके पास आता तो वो उसका मुकाबला कर सकता था। उसने सोचा, थोड़ा आराम करने के लिए मैं इस झोंपड़ी में दाखिल हो जाता हूँ, थोड़ी देर सो जाता हूँ, फिर आगे अपने सफर को शुरू करूंगा। जब वो झोंपड़ी के अंदर दाखिल हुआ तो उसने देखा कि वहां पर एक बहुत बूढ़ा फकीर गहरी नींद में सो रहा है, इस अंदाज में कि अल्लाह ताला का जिक्र भी हो रहा है और वो सो भी रहा है। न जाने वो किस दुनिया में था। गरीब आदमी ने फकीर को हिलाने और नींद से जगाने की कोशिश की, लेकिन वो इतनी गहरी नींद में था कि उसके हिलाने के बावजूद भी वो ना उठा। आदमी ने सोचा, उसकी नींद खराब नहीं करता, मैं करीब ही आराम कर लेता हूँ। जब ये उठेंगे तो मैं इनको बता दूंगा कि मैं यहाँ पर क्यों आया हूँ। कम से कम इनको नुकसान पहुँचाने तो नहीं आया। वो करीब जाकर लेट गया, लेकिन अभी लेटे हुए उसे ज्यादा देर नहीं गुजरी थी कि उसे झोंपड़ी के बाहर अजीब सी आवाज आई। ऐसा लग रहा था कि कोई जमीन पर रेंग कर चल रहा है। वो जंगल में रहने वाला एक बहुत बड़ा खूनी अजदहा था। अभी वो आदमी बाहर की तरफ जा ही रहा था कि उसका पैर किसी चीज से टकराया। उसने देखा तो वो एक बहुत बड़ी सोने की तलवार थी। उसने उस तलवार को उठा लिया और बाहर आकर अजदहे का मुकाबला करने के लिए तैयार होगा। इससे पहले कि अजदहा उस पर हमला करता, उसने बिना रुके उस पर हमला कर दिया और तलवार से उसके टुकड़े टुकड़े कर दिए। उसको मारकर वो झोंपड़ी के अंदर वापस आया तो देखा फकीर जो अभी कुछ देर पहले सो रहा था वो जाग गया है। फकीर ने उससे आने का मकसद पूछा, बेटा तुम कौन हो, कहाँ से आए हो? तो उसने कहा, आपकी झोंपड़ी में कुछ देर आराम करने के लिए आया था। अगर मेरी वजह से आपकी नींद में खलल पैदा हुआ हो तो मैं माजरत चाहता हूँ। आपकी इजाजत के बगैर यहाँ आ गया था, अब मैं चलता हूँ। उस फकीर ने कहा, बेटा तुम्हारी वजह से मेरी नींद खराब नहीं हुई, बल्कि तुम्हारी वजह से हम गहरी नींद से जागे हैं। इसका राज ये है कि हम 12 साल तक सोते रहते हैं और 12 साल तक जागते रहते हैं। तुमने आज वो कारनामा सरअंजाम दे दिया है जिसको कोई भी इंसान अब तक नहीं कर सका। तुमने हमारी तलवार से उस अजदहे को मार दिया जिसने अब तक न जाने कितने आदमी निगल लिए हैं। ये खूनी अजदहा हम तक नहीं पहुंच सकता था, पर तुमने जो काम किया वो इंसानियत की भलाई के लिए किया। और तुम्हारी इस बात से खुश होकर मैं तुमसे कहता हूँ कि तुम्हारा जो मकसद है उसको पाने के लिए अब तुम्हें शहर जाने की कोई ज़रूरत नहीं, बल्कि जो सवाल अपने साथ लेकर आए हो उन सवालों को एक एक करके बयान करो। उस गरीब आदमी ने कहा, मैं तो रास्ते से गुजर रहा था, रास्ते में मैंने देखा कि बादशाह का महल तामीर हो रहा है, लेकिन उसका एक हिस्सा बार बार गिर जाता है। फकीर ने कहा, बेटा बादशाह की एक जवान बेटी है जो शादी के काबिल हो गई है। जब तक बादशाह अपनी बेटी की शादी नहीं करेगा उसका महल इसी तरह गिरता रहेगा। उसने पूछा, लेकिन वो उसकी शादी क्यों नहीं कर रहा? फकीर ने कहा, क्योंकि वो चाहता है कि उसकी बेटी की शादी किसी अमीर और दौलतमंद शहजादे से हो, और उसकी बेटी अल्लाह वाली है। वो चाहती है कि वो किसी गरीब से शादी करे, पर बादशाह इस बात के लिए तैयार नहीं। बस उस बादशाह से जाकर कहो कि तुम अपनी बेटी की शादी उसकी पसंद से कर दो, तो तुम्हारा महल जो अब तक गिरता जा रहा है वो नहीं गिरेगा। उसके बाद उस गरीब आदमी ने मछली का मसला बयान किया। फकीर ने कहा कि मछली को अल्लाह ताला ने दानिशमंदी की दौलत दी है, मगर वो खुद गर्ज है, उसे अपने सीने में दबाए बैठी है। उसे कहो कि वो अपनी अक्लमंदी से दूसरों को फायदा पहुंचाए। उसका रंग स्याह इसलिए है कि वो हमेशा जलती रहती है, किसी को खुश होता हुआ नहीं देख सकती। और दूसरी बात यह है कि उसकी जुबान से अल्लाह ताला का कभी जिक्र जारी नहीं होता, ना वो कलमा पढ़ती है ना वो दुरूद पढ़ती है, जबकि अल्लाह ताला की हर मखलूक दुरूद पाक पढ़ती है और कलमा भी पढ़ती है, लेकिन वो ना जाने क्यों अल्लाह का जिक्र करने से बचती है। यही वजह है कि उसका रंग आम मछलियों जैसा नहीं है, बल्कि काला यानी स्याह है, जिसको देखकर इंसान को कराहियत महसूस होती है। उसके बाद गरीब आदमी ने कहा कि उस आलूचे के पेड़ का फल आखिर क्यों कड़वा है। उस सवाल का जवाब देते हुए फकीर ने कहा, आलूचे के पेड़ के नीचे जड़ों में खजाना दफन है। अगर वो खजाना निकाल लिया जाए तो उसका फल मीठा होगा, जिससे तमाम इंसान फायदा उठाएंगे, और वो खजाना तुम्हारे लिए है। तुम वो इंसान हो जिसने हर एक के लिए सोचा, सिर्फ अपने लिए नहीं सोचा। तुम खुदगर्ज इंसान नहीं हो, और वो खजाना सिर्फ उसी इंसान के लिए है जो हर एक को फायदा पहुंचाए।
तुम ने हर एक का फ़ायदा सुना और उनसे वादा भी किया कि उनके मसले को हल करने के लिए ज़रूर मदद करोगे। अल्लाह ताला तुमसे खुश है और इसीलिए तुम्हारी गुर्बत को ख़त्म करने के लिए वो खजाना उस पेड़ के नीचे दफन है। तुम वहाँ जाओ और उस खजाने को बाहर निकाल लो। वो गरीब आदमी फ़कीर का शुक्रिया अदा करके वहाँ से रवाना हुआ। सबसे पहले आलूचे के पेड़ के पास गया, उसे बताया कि उसका फल कड़वा क्यों है। पेड़ ने उससे कहा, अल्लाह के वास्ते जितना जल्दी हो सके इस खजाने को बाहर निकालो, इसे तुम्हारे लिए ही रखा गया है, तुम इसे ले जाओ। उस आदमी ने खजाने को बाहर निकाला। इतना कीमती खजाना देखकर वो हैरान रह गया, लेकिन दिल में लालच ना आया। फिर वो मछली के पास पहुंचा और उसे बताया कि वो हर वक्त अंदरूनी तौर पर क्यों जलती रहती है। दरअसल उसके दिल में किसी के लिए हमदर्दी नहीं है और अल्लाह ताला का जिक्र नहीं करती। हर वक्त अल्लाह ताला की हम्दो सना बयान करो और हर एक को फ़ायदा दो। इंशाल्लाह तुम ऐसी हो जाओगी कि हर कोई तुम्हें देखकर रश्क करेगा। मछली ने उसका शुक्रिया अदा किया। आखिर में वो आदमी बादशाह के पास पहुंचा। बादशाह ने उसे पाकर खुशी का इजहार किया और कहा कि लगता है तुम अपने मकसद में कामयाब हो गए हो। हमें बताओ कि हमारे सवाल का जवाब क्या है। वो कहने लगा, बेशक मुझे आपके सवाल का जवाब मिल चुका है। एक फकीर अल्लाह वाले ने मुझे आपके मसले का हल बता दिया है। बादशाह ने कहा, जल्दी बताओ, हम फौरन अपने मसले को हल करना चाहते हैं। उसने कहा कि आप अपनी बेटी की शादी नहीं कर रहे। बादशाह ने कहा, तुम्हें ये बात कैसे मालूम हुई? उस आदमी ने कहा, बस उस अल्लाह वाले ने मुझे ये बात बताई है। बादशाह ने कहा, हाँ, क्योंकि जहाँ वो शादी करना चाहती है हम वहाँ उसकी शादी नहीं करना चाहते। लेकिन तुम्हारी बात को सुनकर मुझे अपने मसले का हल मिल गया है। मैंने तुम्हें देखा है कि जब तुम यहाँ आए तुमने वो चीज़ देखी जो आज तक किसी शख्स ने नहीं देखी थी। न जाने कितनी सल्तनत के शहजादे यहाँ आए हैं और हमारी बेटी से शादी के ख्वाहिशमंद भी हैं, लेकिन उनको ये राज पता ना चल सका कि हमारा महल आखिर गिर क्यों जाता है। तुम अक्लमंद और अच्छे इंसान हो, तुम्हारे दिल में इंसानियत की खिदमत का जज्बा है, इसलिए मैं सोचता हूँ कि अपनी बेटी की शादी मैं तुमसे करवा दूँ। इसके बाद बादशाह ने उससे अपनी बेटी की शादी करवा दी। बेशक दोस्तों, अल्लाह ताला हर चीज़ पर कादिर है। दोस्तों, आज की इस कहानी से मालूम हुआ कि हमें भी अल्लाह की तमाम मखलूकात की मदद करनी चाहिए। वो चरिंद परिंद हो, चाहे वो इंसान हो या जो भी ज़रूरतमंद हो, हमें हर ज़रूरतमंद की ज़रूरत को पूरा करने की हमेशा कोशिश करनी चाहिए कि इससे अल्लाह ताला राज़ी होता है और बिगड़ियाँ बनती हैं और अल्लाह रिस्क में भी बरकत अता फरमाता है। उम्मीद करती हूँ कि आज की वीडियो से आपने सबक ज़रूर हासिल किया होगा। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, शेयर भी करें और इस तरह की और सबक आमोज़ कहानियाँ मुस्तकबिल में भी सुनने के लिए मेरे चैनल ज़रीन स्टोरीज़ को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें और साथ लगे बेल आइकन को लाजमी प्रेस करें ताकि मेरी हर नई आने वाली वीडियो टाइम से आपको मिलती रहे। जज़ाकल्लाह। इंशाल्लाह ज़िंदगी रही तो दोबारा हाजिर होंगे एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए अपना रखिएगा बहुत सारा ख्याल। फ़ी अमान अल्लाह।